नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच उस वक्त मामले पर सुनवाई कर रही है, जहां सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। साथ ही सीजेआई की डॉक्टर संघ को नसीहत, जहां कानून अपने हिसाब से काम करेगा, सीजेआई के जरिए डॉक्टर संघ को कहा गया है। साथ ही डॉक्टर संघ ने कहा कि हमें परेशान किया जा रहा है। Called back on duty. The junior doctors are the one who prepare the discharge summary, and the discharge summary is prepared by them. So the workload is then again 2-3 hours. So it is almost 48 hours. It is not even 36 hours. So my humble submission is that you are neither in a physical state or a mental state at that stage to even resist if somebody is teasing you. I'm not even on the bigger sexual assault. I'm not on that because there are many incidents. Shashikaran ji, if you look at our order, Yes. Ms. Kumudra Das, you know what? If you see our order, Yes, Lord. if you see our order, we have in fact highlighted this very aspect that there is a certain hierarchical nature of the workplace in a public hospital or any hospital. So when we have referred to that and we have said because of the hierarchical nature, doctors, including junior doctors, are susceptible to harassment, not just sexual harassment, but different kinds of harassment. Yes, Your Lordship. Yeah. So we have specifically referred to this, but now that you have mentioned it, in a course of our order, in a brief order today, we will add to that as well. No difficulty. Your point is perfectly well taken. So please, My lord, that a is small point to supplement that. say, Is that because my I lord, also may I come just from a take a family of minute? doctors, is that the counter to that, of course, is the fact that there are lots of peer-reviewed studies to say that continuity is important. Now, obviously, doctors can't be treated like this in light of that. So the committee should look into it and propose something You that see, there is has another, I'll tell adequate you one thing. safeguards. I'll tell you one thing. We have got so many emails. I've been flooded with emails which I've been reading to the extent humanly possible. There's another viewpoint also that, look, if you have doctors only on duty for 8 hours, then the purpose is that the doctor must be able to see the evolution of the patient. So that patient is there overnight, then your duty hours may extend beyond 8 hours so that you see that what is the development in the case of the patient between the time you entered and the time you exited. But we are not going to make any comment on that. Let the committee will. Your lordship, but for Only one other But certainly, One thing is 48 hours of duty or 36 hours of duty is a little too aggressive. is not Really. really human. My My lord, lord, may I say I'm representing the KG Car Medical Junior Resident Doctors. They are still RG Car. And my lord, they are By the still. way, Brother Justice Rishikesh Roy pointed out to me in another CB yesterday that you kept on saying car is car. So I said, well, I we are apologize to him. forgetting one crucial thing. So, my lord, Can I speak? can I, We are forgetting one crucial thing. All the doctors, my lord, which your lordships have constituted in the committee, they have passed through this very phase. They are aware of the problems. So, my lord, I'm just saying that they are still terrorized. They are still in fear. They are saying our senior residents are back at work. We'll give it to the Registrar General in a sealed cover, the names of the people. There are about 70 junior residents and they are interns. And they are still feeling terrorized. They are threatened. They are actually being targeted Geetal- in the hospital. But terrorized by whom? Because this is a serious thing. And the Yes. in the RG Kaur Medical Hospital. CISF College, is what, already what, there. what is their But grievance? instead of, my lord, giving them here, let them be given to me. I'll ensure, my lord, CISF to do the needful. My lord. Yes, Be better. but we have to have their names in sealed cover because those who've spoken up are feeling targeted already. Yes. And they have a But timeline targeted- of but targeted- videos they have taken. Targeted by whom? Don't give us names, but targeted broadly By by. officials, my lords, by goons, I am for By- the 20,000 doctors by- in the, Kolkata, my lords. But if your And lordship sees the. some of, report, many of them work in I- RG Car. Possibly a hint of. By members of the administration, by people who are in the hospital. All right, and we'll take note of that. We'll Yes, take- There is one submission, Your Lordship. There's a last submission, Your Lordship, I want to make. Can we have a compensation distress fund That's been- for the victims and the deceased of the family created by the state so that
when at the time of the crisis of this kind of situation, they can be also get a compensation system like what we have done in the Nirbhaya case, Your Lordship. All right, let's just see the status report for a moment. We'll just see the status. With your lordship, Just give us one moment. with your lordship permission, may I just, 1 second, If we'll have to lordship put in. permits us, then should we post on the filing, e-filing, the suggestions or the pointers that we have, because it is anonymity which the resident doctors and interns from different places they are requesting, because the direct impact is on them. And their mental state is terrible. There is also a survey report of National Medical Council which says that 28%. Point taken. Under- There should be a portal where suggestions can be given to the Yes. committee, even anonymously, without disclosure of identity. Yes, Your Lord. Point well taken. Noted. Lords, after the status report, could we have 1 minute on the SIT, my lords? We are representing 5 associations of doctors. And the difficulty is that there is an institutional compromise with regard to the financial regularities and the rate. Here's why. There were the same gentleman who was the head of Dr. Shundip Ghosh, who was head of this RG Kaur Medical College. Also, for example, commissioned, asked for CCTV cameras for 14 lakhs to be rented. Now, had he bought those CCTV cameras, they would have been there. It would have been a deterrent, and there would have been better accountability. An SIT 2 days ago was, and I have the notification here, my lords. An SIT was set up by the West Bengal government. To look into these irregularities by the same person, and that only constitutes officials that are under the control of the West Bengal government. But would your lordship consider having the status report? तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कोलकाता के रेप एंड मर्डर वाले मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया डॉक्टरों को काम पर वापस लौटना चाहिए क्योंकि मरीजों को कई तरह की परेशानी हो रही है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सीजेआई की डॉक्टर संघ को नसीहत भी दी गई है। हालांकि डॉक्टर संघ के जरिए भी कई दलीलों का जिक्र किया। All this. He's been Please. in the nurses case, he was Please. the IG. The lordships, my lord, consider the report first, my lord. All right. That just- might, my So, lord. my lords, if, with regard to the SIT, just to Just one close that second. loop. Let's see the report and then we will come back to you on the SIT. Yes, my lord. We've also filed our report. SP, Your Honor, I'm Dr. Rajiv Yoshi calling from Just 1 Pune. second. Everybody can just hold their patience for 2 minutes. Let's quickly run through the two status reports. The state's report was not called for, but they have, my lord, asked, your lordship's way, my lord, it's entirely your It's been lordship. called for in the order. Why did my learned friend say that? order, I thought we had asked for the. Yes, of course. the order. Page 10, my lord, raise please, my lord, is, In Page fact- 10 of yours. In fact, mine. Madhaj, I might, if your lordship will give me a minute, Madhaj, I don't want to interfere. We'll just quickly run through this, then come back to you in a moment so that we Very, go step by very step. well. 10 para 7, Lord, before that, we have narrated the facts, etc., which broadly your lordships are aware, so I'm not, and I'm obviously not reading, my lord, your lordships may read from para 7. So date and time may kindly be, my lord, taken note of, my lord. Eventually, we have, this is very, very preliminary finding, but we have recorded some, All right. flagged some issues. We'll just. I'm ask if they have a spare copy.
तो डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्टर संघ को बड़ी नसीहत दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सीजेआई की डॉक्टर संघ को जो नसीहत है, उसके बाद डॉक्टर संघ के जरिए भी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। डॉक्टर गैर हाजिर अगर रहे तो एब्सेंट माने जाएंगे, इस तरह का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनवाई के दौरान किया गया। हम जानते हैं डॉक्टर बहुत प्रेशर में है और न सिर्फ शारीरिक तौर बल्कि मानसिक तौर पर भी अभी डॉक्टर जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने काम पर हर हाल में लौटना होगा। और कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है और ऐसे में तमाम जो यहां पर वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनके जरिए इस पूरे मामले पर कई तरह की बातों का जिक्र किया गया, दलीलें दी गई। ये भी कहा कि तकरीबन 17 की संख्या बताई गई है जो कि इंटर्न है और इंटर्न वहां पर काम सीखने के लिए आए हैं, जिसमें छात्राएं भी हैं। और जब इंटर्न वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, सीधा रुख आपका करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर, कोलकाता कांड को लेकर अब तक की क्या-क्या बड़ी बातें रही? जी बिल्कुल, देखिए कोलकाता का जो कांड है वो अपने आप में हर किसी को झकझोर रहा है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। और अगर अभी मौजूदा की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन सुनवाई के दौरान जहां सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल को खत्म करें और काम पर लौटें। हमने टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है, जांच की जा रही है, सभी पहलुओं को परखा जा रहा है, उसके आधार पर कोई फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जो आम जनता है, जो आम मरीज हैं, उनको काफी दिक्कत परेशानी हो रही है। वो अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पे डॉक्टर नहीं है, जो कंसल्टेंट हैं वो किसी तरीके से उनको हैंडल कर रहे हैं, जो वहां पे पहले से भर्ती मरीज हैं उनको लेकर के, लेकिन किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन या किसी भी तरीके की कोई सुविधा किसी भी मरीज को नहीं मिल पा रही है। और लोगों की जान बचाना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को खत्म करें और अपने काम पर लौटें, क्योंकि जब कोई इंसान डॉक्टर बनता है तो सबसे बड़ी उसकी जो जिम्मेदारी होती है और जो सबसे बड़ी शपथ लेकर के वो आगे बढ़ता है वो यही होता है कि वो हर संभव कोशिश करेगा किसी भी व्यक्ति को की जान बचाने के लिए। और इस वक्त जो स्थिति पूरे मतलब देश में देखने को मिल रही है, दिल्ली हो या फिर कलकत्ता या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम राज्यों में, वहां पर स्थिति यह है कि मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है और कई ऐसे मरीज हैं जो इलाज के अभाव में और भी ज्यादा गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चले और इमरजेंसी सेवाएं उसके लिए होती हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति में है तो उसको सामान्य निश्चित तौर पर कंचन, मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और अमूमन तौर पर इस तरह के प्रदर्शन या आंदोलन में यही देखने को मिल पाता है। आम जनमानस सबसे ज्यादा ग्रसित होता है, शायद जिसकी कोई गलती भी नहीं होती। लेकिन इस बीच समझने की कोशिश, ये बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार कहा जा रहा है कि डॉक्टर अपने काम पर लौट जाए। अगर डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं रहे और कभी ये इस तरह की सूचना मिलती है तो उनकी एब्सेंट लग जाएगी। और साथ ही ये भी कहा गया कि टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है, वो अपने स्तर पर लगातार अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। वही अगर हम डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स के जरिए कहा जा रहा है टास्क फोर्स कमेटी का गठन तो हमेशा कर दिया जाता है, हर मामलों में कर दिया जाता है, लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, चाहे वो डॉक्टर्स की हो या अस्पताल में सीसीटीवी, तमाम मांगों को लेकर वो लगातार इस तरह की बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन अब क्या लग रहा है कि हड़ताल क्या खत्म होगी या आज अंतिम दिन होगा? जी देखिए, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हमारे भी सुझाव लिए जाएं, जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो जांच की जा रही है, उसमें हमारे भी सुझाव लिए जाएं, कोर्ट हमारी भी बातों को सुने, आखिर हम क्या चाहते हैं, हम किस तरीके से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। चलिए हम अपने काम पर लौट आते हैं, लेकिन इस तरीके की आने वाले दिनों में कोई घटना नहीं घटेगी किसी डॉक्टर के साथ या किसी आम महिला के साथ या किसी आम नागरिक के साथ, क्या इसका भरोसा मिलता है? वो तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान डॉक्टर्स कर रहे थे और वो खुश भी हो रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही चीजें बताई हैं, राज्य सरकार को फटकार लगाना या फिर टास्क फोर्स का से जांच कराना, तमाम चीजें, तो क्या अब वो डॉक्टर्स इनकी बातों को सुनते हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट में सारी सुनवाई खत्म होती है और कोर्ट ने पहले ही सुनवाई के दौरान ही जब इस बात का जिक्र किया कि डॉक्टर्स अपने काम पर लौटे, नहीं लौटेंगे तो उनकी वहां पर प्रेजेंट नहीं मानी जाएगी, तो अब ऐसे में डॉक्टर्स की अपनी एक अलग बैठक की जाएगी। जितने भी इनके मतलब फाउंडेशन है, अलग अलग जो डॉक्टर्स के लोग हैं, वो अपनी एक बड़ी पूरी तरीके से एक
बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद वो फैसला लेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या वो उनका डॉक्टर का सुझाव टास्क फोर्स में लेंगे या उनको अपने मरीजों की जो जान बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है उसको वो पूरा करेंगे, वो तमाम चीजें। लेकिन अभी फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अभी फिलहाल डॉक्टर्स हड़ताल खत्म नहीं किए हैं, अभी वो अपनी हड़ताल को जारी किए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी कर ले, उसके बाद जो हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट लोग हैं, जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हम बात कर लें, फोडा की हम बात कर लें, उन लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की जाएगी और बैठक करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे निकला जाएगा कि क्या करना है, क्या उस टास्क फोर्स में डॉक्टरों की सहभागिता, उनके सुझाव शामिल किए जाने हैं या फिर उनको अपनी हड़ताल करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ अपनी इलाज का जो उनका काम है, मरीजों को जो देखना उसको वो सुचारू रूप से कर सकेंगे। जी कंचन, इस बीच सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट को लेकर ही सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था कि आखिर किस तरह से स्टेटस रिपोर्ट में वो महत्वपूर्ण चीजें और साक्ष्य यहां पर मेंशन सीबीआई के जरिए किए गए होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। उसको लेकर क्या जानकारी, क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए स्टेटस रिपोर्ट को देखा गया, उस पर भी कोई टीका टिप्पणी? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दे रही है, लेकिन जो तमाम अलग अलग लोगों के नाम उस स्टेटस रिपोर्ट में शामिल हैं, क्योंकि संदीप घोष का जो बयान है, जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनका जो बयान है, साथ ही जो आरोपी है संजय राय, उसका जो बयान, उन सारों के आधार पर स्टेटस रिपोर्ट बनाई गई है। लेकिन अब कोर्ट उस स्टेटस रिपोर्ट की क्या कुछ मायने निकालता है, कोर्ट उस स्टेटस रिपोर्ट को कैसे देखता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल एक महिला की मौत का है, यहाँ पे सवाल लगातार बढ़ते बलात्कार को लेकर के है। एक दिन की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि एक दिन में लगभग 87 बलात्कार रोज हो रहे हैं। इन बलात्कारों पे क्या एक सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से अंकुश लग पाएगा, क्या इस तरीके की घटनाओं पर रोक लग पाएगी? लेकिन अब सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट तैयार की है उसमें कई लोगों के और नाम शामिल है। वो नाम इस आधार पर शामिल है कि इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं इस तरीके की वारदात होती आई हैं। हालांकि बलात्कार के बाद हत्या या फिर हत्या भी हुई होगी तो वो मामला संज्ञान में इतना गंभीर रूप से नहीं आया होगा और उसके आधार पर आगे की जांच करेगी। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जिस तरीके से काम कर रही है तो नाराजगी तो जरूर है, पुलिस की लापरवाही जरूर इसमें देखने को मिल रही है और आरजी मेडिकल कॉलेज की भी इसमें लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अगर आपके अस्पताल में कोई ट्रेनी डॉक्टर है तो वहां पे उसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के वहां पे पहुंचते हैं लोगों का इलाज करने के लिए, परिवार का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन जब वही वहां पे सुरक्षित नहीं है तो आम मरीज का वहां क्या इलाज होता होगा? तमाम स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने अपनी तरफ से बनाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश भी की जा रही है। अब देखना है कि कोर्ट इन सारे मामलों को लेकर के क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। कंचन, देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है वो अभी हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि कोलकाता रेप मर्डर केस का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है और देश भर में हर किसी के जुबान पर इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर पिछला इतिहास खंगाले तो संदीप घोष पर तो कई पहले आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, चाहे अपनी पत्नी को पीटना हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, बच्चों को जानबूझकर फेल करके पैसों की उगाही करना हो, ये तमाम ऐसे मामलों में संलिप्तता देखने को मिल पाई है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ेंगी निश्चित तौर पर। तो क्या ये मानकर चला जाए जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी अब सबके सामने होगा? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि संदीप घोष का अब बच पाना या फिर उसकी मुश्किलें कम होना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक मामला, मैंने ऐसा पहले भी कहा कि ये एक मामला इसलिए संज्ञान में आ गया क्योंकि बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या की गई और हत्या करने के बाद इस तरीके से इस मामले को उजागर किया गया। लेकिन न जाने कितने ऐसे और मामले होंगे, न जाने कितनी ऐसी और महिलाएं होंगी जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटी होंगी, लेकिन परिवार ने चुप्पी साधी होगी क्योंकि आरजी मेडिकल कॉलेज का उस पर दबाव बना होगा। लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस की भी यहाँ पे लापरवाही देखने को मिल रही है और जो आरोपी है संजय रॉय, उसकी मानसिक दशा का हवाला दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कई सवाल तो न सिर्फ बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, बल्कि बंगाल सरकार की भी